these images, just 3 months old, when India's Prime Minister Narendra Modi visited the White House. Trump and Modi call each other friends, but all this feels different now, because there are two very different narratives about the ceasefire between India and Pakistan. President Trump has claimed the role as dealmaker-in-chief after the two nuclear-armed neighbors came dangerously close to war when they struck each other with missiles, drones and heavy artillery for 4 days. So what exactly did Trump say that's ruffled feathers here in Delhi? Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And Trump didn't stop there. He even claimed he prevented a nuclear war. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. That's definitely not how India tells it. Modi's government says it was Indian firepower that forced Pakistan to ask for a ceasefire on May 10th. साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। Just to be clear, India has confirmed getting calls from US Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio right before the ceasefire. But while Pakistan later thanked Donald Trump for the truce, India doesn't acknowledge any US role. It's also pushed back on Trump's claim that trade even came up. Instead, Delhi says it won't fall for what Prime Minister Modi called nuclear blackmail from Pakistan. And it's sticking to this one line. Let me be clear. It was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. Anything to do with Pakistan and Kashmir hits a raw nerve here in India. Kashmir is right at the center of tensions between the two nuclear powers. Both countries claim it in full, and for years India has made it clear no international mediation. In Delhi, Kashmir is seen as an internal issue. India also says that it isn't ready for any direct talks with Pakistan unless cross-border terrorism stops. The Pakistani government, of course, denies being responsible for attacks in India. Both sides are dug in, claiming victory. And there's little sign that Trump can turn this fragile ceasefire into US-led peace talks, as he suggested. A week on, sources tell me the US will first need some quiet diplomacy and a bit of damage control in Delhi. आज हम लोग सर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट कि टैरिफ वाला पागलपन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। वैसे तो एसबीटीवी ने पहले ही अपने वीडियो में ये क्लियर कर दिया था कि किस तरह से टेढ़ी निगाहें ट्रंप की इंडिया की ओर है। मतलब ईगो की भी ये हद हो सकती है। आप करें तो बहुत अच्छा और कोई और करे तो बहुत बुरा। अगर आप रसिया से यूरेनियम ले रहे हैं, प्लेडियम ले रहे हैं, ईंधन ले रहे हैं, वो ठीक है। और अगर इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल ले रहा है तो गलत। कमाल की बात है भाई। और 50% का जो आपने टैरिफ दिया है ना, ये केवल इंडिया को नहीं दिया है, आपने पूरे 140 करोड़ की जो अर्थव्यवस्था भारतीय हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट पे भी आपने चोट की है। वो क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं हमारे और क्वाड में भी हैं। लेकिन अब बात उठती है कि आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? 36 बार आपने सीज फायर की बात की, हमने नहीं माना। इसलिए क्या भारत अपने हितों को ना देखते हुए आपके हां में हां मिलाए तो ठीक, नहीं तो गलत? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने 25% पहले लगाया, 25% अतिरिक्त आपने टैरिफ लगा दिया है और हम लोग जरूर परेशान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट रास्ता निकलता है। आज हम कुछ डेटा के साथ भी आए हैं कि आखिर हम लोग क्यों यूएस प्रेसिडेंट हमसे चिढ़े हुए हैं। देखिए, हमारी जो रसिया से 1,17,000 करोड़ का 2024-25 में जो क्रूड ऑयल है उसका कारोबार हुआ है। ठीक है जी, यानी हमें जो फायदा हुआ है इससे रिफाइन करके जो हमने सेल किया है इसको क्रूड ऑयल को, उसमें 10 बिलियन करोड़ का हुआ है जो बेनिफिट हुआ है। इंडो अमेरिका
के बीच जो ट्रेड है 131.84 बिलियन डॉलर का है और जो एक्सपेक्टेशंस है इस तरह चलता रहा तो 500 मिलियन डॉलर का पहुंच जाएगा, 500 बिलियन का डॉलर पहुंच जाएगा 2030 तक। लेकिन अगर इस तरह से ड्यूटीज बढ़ चुके हैं बॉर्डर टू बॉर्डर तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो डिमांड है वो दोनों में काफी डिफरेंस है जाने वाली है। ऑब्वियस है क्योंकि अगर अमेरिकी पॉपुलेशंस को वो ज्यादा महंगा लगेगा तो हमसे क्यों खरीदेंगे, क्योंकि हम पे टैरिफ जो है 50% है, ब्राजील पे भी 50% है, चाइना पे 30% है, पाकिस्तान पे 19% है, बांग्लादेश पे टैक्स जो 20% है। टेक्सटाइल जो हम कपड़े देते हैं अगर बांग्लादेश की ड्यूटीज कम है तो उनके कपड़े क्यों नहीं लेंगे, वो लेंगे वो। फिर इंडियन जो उत्पादन है वो कमेगा, जब उत्पादन कमेगा तो कंपनियां बैन होगी। ऑलरेडी 6 कंपनियों पे आपने बैन लगाया है, वहां से लोगों को आप बेड़ियों में डाल के ला रहे हैं यहाँ पे, तो आपका इंटेंशन क्या है। चलिए अभी हम कुछ और डेटा पे आते हैं। सबसे पहली बात है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अभी भारत से अमेरिका को निर्यात के लिए जाने वाले प्रमुख उत्पाद जो हैं मोती, कीमती पत्थर, धातु और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, खनिज ईंधन है, तेल है और कई सारे परमाणु रिएक्टर के बॉयलर हैं, लोहे का इस्पात की सामान है। अगर ये सब सामान अगर हमारे यहाँ भी उसको अगर हम आपसे जो है इंपोर्ट जो है उस पे भी तो असर पड़ेगा ट्रंप साहब। और हम आपको फार्मास्यूटिकल्स हो गया जो सबसे अच्छा हम लोग काम कर रहे थे आपके साथ में, टेक्सटाइल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब का एक्सपोर्ट, प्लस आप सब्जियां वगैरह भी ले रहे थे, एग्रीकल्चर से जुड़े कई सामान हमारे आपके यहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब बात निकल के आती है पॉलिटिकल। मैं पहले ही वीडियो में बताया था आपको कि जो रसिया यूक्रेन बार की खींच है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में और दिल में, वो इंडिया पे उतारा जा रहा है। तो अगर आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे ही उतार रहे हो, आप टफ नेगोशिएशन करने के बाद भी आप हम पे हमारे हितों को ना समझते हुए आप लगातार इकोनॉमिकल बार करते रहेंगे, सेंसन पे सेंसन लगाते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे। आप अमेरिकी और इंडियन नीतियों पे, इन दोनों पे काफी गहरा असर पड़ने जा रहा है आपके इस कदम से। लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आप वही करते हैं जो आपके दिल और दिमाग में आता है। आपने इसे कानूनी जामा भी पहना दिया है, कल आधिकारिक तौर पे यूएस ने बोल भी दिया जी इसको हमने साइन कर लिया है। अब बात निकल के आती है कि आगे क्या होगा। क्या अभी जो NSA डोभाल साहब हैं उनका जो अभी चल रहा है वहाँ पे मीटिंग, आप पुतिन के साथ मिलने वाले भी हैं, प्लस आपके यहाँ के भी जो मंत्री यूएस के मिलने वाले हैं, इन दोनों के वहाँ पे जो बातचीत रहेगी उसके बाद भी कुछ फैसला हो सकता है कि टैरिफ और बढ़ेगा या घटेगा। मैं और कह रहा हूँ कि बढ़ भी सकता है, क्योंकि ट्रंप के दिमाग का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उन्हें अपने, जबकि उनका जो उसका मेन जो एक प्रतिस्पर्धा जो देश करता है वो चाइना है। चाइना अपने तौर पे इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अमेरिका सोच के भी गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है उसके सामने। और उसके सामने आप इंडिया को जो स्टैंड कर रहे थे, आप उसको इकोनॉमिकल नीचे, जो कहते हैं ना आप इंडिया खुद संभाल लेगा अपने आप को, जी कैसे संभाल लेगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको पता है जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, मैं उसकी बात बताने जा रहा हूं, ये लगभग 67.76 बिलियन डॉलर का है FDI के अनुसार इंडिया में इन्वेस्टमेंट। क्या इस पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर यहां से फोन होकर तैयार होकर जाएगा अमेरिका में और उसकी ड्यूटीज लगभग 50% टैरिफ के साथ है, वो तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। फिर वो हमारे यहाँ क्यों काम करेंगे, प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएंगे हमारे यहाँ। ये एक जानबूझकर एक रणनीतिक फैसला ले रहे हैं ट्रंप कि आप मेरे हाँ में हाँ मिलाइए, ये एक प्रेशर है। बट एक कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री है, उसके अपने हित भी होते हैं। अगर मोदी आपके फ्रेंड हैं या थे, जो भी बात हो, लेकिन देश से बड़ा कोई भी न चेयर होता है न दोस्ती होती है। देश के लिए, देश के हित के लिए जो चीजें जरूरी है वो जरूर कदम उठाना चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर को, आप स्टैंड लीजिए। अगर हमारी 30% प्रॉब्लम्स भी है इकोनॉमिकल, जो अगर अमेरिकन टैरिफ के बाद आती है,
तो कई और कंट्रीज हैं, हम वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं जैसे चाइना ने कर रखा है। असर तो पड़ेगा, लेकिन निराकरण भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप भूलिए मत, ये भारत है, हमेशा हमेशा बाहर निकल के आया है और अपनी समस्याओं का हल निकालना ये जानते हैं। यहां की नेशनलिटी पे कोई सवाल ना उठाए। 140 करोड़ की पॉपुलेशन एक है और एक होकर जवाब देगी। और मैं बताऊंगा, कई सारे वीडियोज में डाल रहा हूं, कई सारे जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके बयान, ब्राजील ने तो सरेआम बोल दिया, ब्राजील के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा जी हमें बात ही नहीं करना है, टैरिफ बढ़ाते रहो, तो हमें अमेरिका से बात नहीं करनी है। क्या आपको ब्रिक्स से प्रॉब्लम है? क्या आपको RIC से प्रॉब्लम है? तो फिर खुल के बोलिए ना, पीछे से बार मत कीजिए इकोनॉमिकल। ट्रंप साहब संभल जाइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि इनके अपने यहां के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और आपने जो इतने वायदे करके आए हैं इलेक्शन में, उसको पूरा करने के लिए आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ना खो दें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। लेकिन आप, फिर से मैं बोल रहा हूं, SBTV ने जो पहले कहा था, आज से 1 महीना पहले की वीडियो उठा के देखिए, सब चीज वही हो रहा है। हम एनालिसिस को जारी रखेंगे अगले वीडियो तक। आपकी क्या राय है आप जरूर दें, जिससे कि हम और इसको बेहतर तरीके से आप तक लेके आ सकें।